Hello everybody, I'm new to the channel, to the YouTube family, so please subscribe to my channel if you like my videos related to economic concept. We are starting with the first topic, types of goods produced in the economy. First, final goods. Final goods, as the name suggests, are final goods, are finally ready to be used either by the producer or by the consumer. And I have written something, cross the boundary line of production. It means that there is nothing left. Every production activity is done to these goods. So these are called final goods. Like a packet of milk is fully ready, fully packed, and is delivered to the shops to be finally used by the producer, by the consumer. So the packet of milk will be called final goods. Now we comes to the intermediate goods. Intermediate goods are those goods which have not crossed the boundary line of production, which means there is value still to be added to these goods. Maybe packaging is not done, or maybe it is used as a raw material. It is generally used as a raw material by one firm from the another, by one firm to the another. Like if I am firm A and you are firm B, and I purchase some shirts from you in order to resell it to the final consumer, then I am adding the value through the process of reselling. So I must put this shirt into the category of intermediate goods because I am reselling it, and value is still to be added through the process of reselling. Now, consumer goods, as the name itself suggests, it is used by consumer for the directly satisfaction of their want. Like if I am feeling hungry, I go to a pizzeria and I ate a pizza. Then I would say this pizza was a consumer good. Capital good, as the name again suggests itself, is are the capitals of a firm. Like if I own a car manufacturing firm, then a car manufacturing firm may use tons of machines to produce a car. So those machines are nothing but capital goods of that car company. I have written something, fixed assets of the producer. In short, you can say that. Not only final goods are included in the estimation of GDP. I hope and I guess that you all know GDP. What is GDP? Full form of GDP is gross domestic product. Its calculation is very necessary in order to know how well we are doing as a country, as a nation in the world. So in the estimation of that, we do not include intermediate goods. We include only final goods, because as we have studied that intermediate goods are like a raw material. So we do not include raw material in the estimation of GDP, because final में वो include हो चुके हैं. जब हमने final एक शर्ट हमने बना ली और वो एक शॉप है, शॉप ओनर के पास वो सेलिंग के लिए चली गई है, तो अब उसका जो जितने की भी वो सेल होएगी, लाइक लेट्स से वो 500 रुपए की रीसेल सेल हुई है, तो हम वो 500 रुपए वो में डालेंगे. ये सब नहीं डालेंगे कि उसमें जो भी धागा, जो भी वूल वगैरह यूज किया गया था, जितना भी रॉ मटेरियल यूज किया गया था, उसकी डिटेल्स नहीं डालेंगे, क्योंकि वो फाइनल एस्टिमेशन में आ चुकी है. इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं डालते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज डिफरेंशिएशन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड. Intermediate goods, these goods are used as raw material for the production of other good. ये सब हमने कितनी बार देख लिया. रॉ मटेरियल की तरह ही, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल की तरह ही यूज किए जाते हैं किसी और गुड को बनाने के लिए. ठीक है. अब जैसे कि मैंने एक पैकेट ऑफ मिल्क खरीदा और मैं एक हलवाई हूँ, तो वो पैकेट ऑफ मिल्क मेरे लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि मैं उससे मिठाई बनाऊंगी. तो और वही सेम पैकेट ऑफ मिल्क एक कंज्यूमर ने खरीदा, या मैं अपने घर गई, अब मैं अपना कोई फर्म का काम नहीं कर रही हूँ, अपना कोई स्वीट ऑनर वाली शॉप अग्रवाल स्वीट नहीं है मेरी. अब मैं एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ और मैं गई टी बनाने के लिए, मैंने एक पैकेट ऑफ मिल्क खरीदा. देन दैट पैकेट ऑफ मिल्क विल बी कॉल्ड एज फाइनल गुड्स. अब ना ये एंड यूजर पे डिपेंड करता है कि किस गुड को हम फाइनल बोलेंगे. एक लिस्ट नहीं है कि इनको हम फाइनल बोलेंगे, इनको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे, इनको कंज्यूमर बोलेंगे. ये डिपेंड करता है एंड यूजर पे. इफ एंड यूजर इज अ कंज्यूमर, देन वी विल कॉल इट फाइनल गुड. अगर एंड यूजर एक प्रोड्यूसर है जो उसमें वैल्यू ऐड करने वाला है, जैसे कि मैं मिल्क खरीद रही हूँ तो मैं उससे मिठाई बनाने वाली हूँ, तो अभी वैल्यू एडिट करना बाकी है उस मिल्क से, तो मैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स में डालूंगी.
अब सेकंड पॉइंट है, दीज गुड्स मे बी रिसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए ये रीसेल किए जाते हैं। जैसे कि मैंने शर्ट खरीदी थी आप लोगों से, फर्म बी से मैंने शर्ट खरीदी थी, मेरा पर्पस क्या था कि मैंने आपसे 500 की खरीदी और मैंने बेची 800 की, तो बीच में 200 रुपए मैंने अपना प्रॉफिट कमाया। तो प्रॉफिट के लिए ये चीज, ये इंटरमीडिएट गुड्स खरीदे जाते हैं। लेकिन फाइनल गुड्स ये रिसोल्ड नहीं किए जाते, ये डायरेक्टली सेल किए जाते हैं, रिसोल्ड नहीं किए जाते। अगर तुम किसी मिल्क शॉप पे जाओगे, अपने आसपास डेयरी शॉप पे जाओगे, तुम डायरेक्टली मिल्क खरीदते हो, ये प्रॉफिट के लिए नहीं, रीसेल नहीं करते उसको जाके कि पड़ोसी को बेच देते हो, अपने घर के लिए यूज के लिए लाते हो, तो वो फाइनल गुड है। दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। ये जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं वो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं किया होता उन्होंने, उनका सारा प्रोडक्शन चीजें अभी खत्म नहीं होती है, उनमें कुछ वैल्यू अभी भी डालना बाकी होता है। जबकि फाइनल गुड बिल्कुल रेडी होता है, फाइनल होता है, यूजर बस यूजर्स चाहिए उसको, उनको कंज्यूमर चाहिए या प्रोड्यूसर चाहिए, कोई चाहिए कि उसको यूज कर ले। वैल्यू इज येट टू बी एडेड टू दीज गुड्स। वही बात है कि वैल्यू अभी ऐड करना बाकी है, और इसमें फाइनल गुड में वैल्यू अभी एडिट करना बाकी नहीं है, वैल्यू सब कुछ ऐड हो गया है, अब बस सेल करके पैसा कमाना है। वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, सॉरी आई हैव रिपीटेड दिस लाइन ट्वाइस। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ये अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था, इंटरमीडिएट गुड्स जो है नेशनल इनकम में नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि ये रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल का जितना भी हमारा खर्चा हुआ होगा एक चीज को बनाने के लिए, वो फाइनल में ऑब्वियसली उसकी वैल्यू ऐड हो चुकी होगी, तो हम दोबारा नहीं करते, क्योंकि इसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मे बी यू माइट हैव हर्ड दिस कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर हम ऐड कर दे तो, क्योंकि फाइनल में उसकी वैल्यू ऑलरेडी एडेड है, तो हम दोबारा करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाती है फाइनल गुड। जबकि दूसरी साइड में फाइनल गुड को नेशनल इनकम में हम काउंट करते हैं, और नेशनल इनकम काउंट कर एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। इन तीनों ही मेथड में हम इंटरमीडिएट गुड्स नहीं डालते, क्योंकि जैसे मेरा मान लो एक फर्नीचर शॉप है, मैं फर्नीचर बनाती हूँ, आई एम समवन हु आई एम अ कारपेंटर, not carpenter, I make furniture, like beautiful bed or everything related to furniture। तो अब मैं जो भी wood खरीदूंगी मार्केट से, जो भी सामान लाऊंगी, लाइक जितनी भी चीजें मैं एक फर्नीचर बनाने में चाहिए होती हैं, तो उनकी वैल्यू तो ऑब्वियसली जब मैं एक पूरा फर्निश्ड चीज बेचूंगी, चाहे वो एक चेयर मान लो, तो चेयर में बनाने के लिए जितनी भी कुशन, जितनी भी चीजें यूज की गई होंगी, वो फाइनल वैल्यू में मैं ऐड करके ही उसको सेल करूंगी, तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं डालते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप you like my video. Please subscribe to my channel if you like it. Share it as much as you can. Please support me. Thank you.